Pause. Yes, indeed. We must practice the pause. You know, we should even pause before we eat Why? to first find out whether what we are eating is healthy or not. In the race of our lives, we just stuff ourselves with whatever is available. Standard 4 will enact a play and inform us about healthy and unhealthy foods. I'm hungry. Mama's not there at home. Let's see what's in the kitchen. Yay! Burger, chips, and cake. There are also fruits, milk, and bread. Mama says not to eat burger and chips, but I love them. What do I eat? What do I eat? I am your healthy food escort. Let me take you to the healthy food. This is bread. Eat me! Eat me! You will get energy from me. What? Plain bread? You put me in between two slices of bread and then, wow, the plain bread is not only healthy but becomes tasty too. Also, I have a lot of calcium to make your bones strong. No! I want something super duper tasty. Then come with me. Try some junk food. It's super duper tasty. Eat me, eat me. I am a tasty burger from McDonald's. Remember, Mama told you not to eat unhealthy food. Oh no! What should I eat? I'm really hungry. Eat me, eat me. I am an apple. An apple a day keeps the doctor away. Oh, apple, you are so boring. I don't get that thing when I eat you. I told you that she will make you eat all the boring stuff. Try these chips with amazing flavors. Eat me, eat me. I am crunchy and tasty chips. If you eat me once, you will eat me more and more. See, the chips himself is saying that you will eat it more and more. That means you will get addicted. No, I don't want to get addicted. What should I do? Drink me, drink me. I am milk. I make your bones and teeth strong. Eat me, eat me. I am very sweet. Eat me, eat me. I am a fish. I have important nutrients such as proteins and omega 3 fatty acids. I am very important for your body and brain. Eat me, eat me. I am a chill ice cream. Eat me, eat me. I am so soft and creamy. What do I eat? These are the healthy food. They give the body what it needs: carbohydrate, proteins, fats, vitamins, and minerals. Children who eat them grow up healthy without any diseases. They have improved mood and good mental health. They have increased the energy level. They have control over their weight. They pay more attention in class and sleep well at night. Let me make my case. They are junk food. They are highly processed. They are high in calories, fat, salt, and sugar. They are very tasty. They are popular and people are just crazy about them. What? Eat healthy food. Eat healthy food. Eat us! Eat us! Eat us! What do I do? Okay, I'll give them a challenge and let's see who will win. Come on, there's a challenge for you and let's see who wins.
having a tug of war between healthy food and junk food. Healthy food wins. Allah subhanahu wa ta'ala has ordered us to eat pure and nutritious foods. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, chapter 2, verse 172, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. Which means, O you who believe, eat from the pure, good and nutritious things that we have provided you, and thank Allah if you worship Him alone. Akbar, Allah is great. It is very difficult to put Allah subhanahu wa ta'ala's glory in words. Alia Bobre of Standard 1st A through a speech in Urdu titled Allah Ki Azmat will attempt to describe Allah subhanahu wa ta'ala's glory. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيम بسم الله الرحمن الرحीम. मेरा मौजू है अल्लाह की अज़मत. मैंने अल्लाह को ढूंढा तो उसने अपना तारुफ करवाया. अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम. मैं वो हूँ जो मौत से पाक हूँ. आप पाबंद बन के चलो उस अल्लाह के जिसकी शहंशाही है. उस अल्लाह के बन के चलो जिसने मुझे बनाया. उस अल्लाह के पाबंद बन के चलो जिसने मुझे आँखों का नूर दिया, जुबान में बोल दिए, जिस्म में ताकत दी, अक्ल को समझने के औसाफ दिए. उस अल्लाह के बन के चलो जिसने कुरान को उतारा, जिसने ज़मीन को बिछाया, जिसने आसमान को उठाया. आसमान की छत मेरे अल्लाह के कब्ज़े में है. ज़मीन का फर्श मेरे अल्लाह के कब्ज़े में है. हवाओं के झोंके मेरे अल्लाह के कब्ज़े में है. सर्दी का मौसम मेरे अल्लाह का इरादा है. गर्मी की तपिश मेरे अल्लाह का इरादा है. बादलों से पानी का गिरना मेरे अल्लाह का इरादा है. बर्फ़ का गिरना मेरे अल्लाह की बादशाही है. और तूफ़ानों का आना, बिजलियों का चमकना, बादलों की गरज, मौसमों का तब्दील होना, दरख्तों के फल, फलों के जायके, जायकों में खुशबू, फलों में मिठास, फलों के ऊपर कवर्स, छिलके. एक अनार में रब की कुदरत का शाहकार है. दाना दाना जरा जोड़ के तो दिखाओ, फिर इसको पर्दों में लपेट के दिखाओ, फिर उसकी पैकिंग करके दिखाओ, फिर उसमें रंग भर के दिखाओ, फिर उसमें जायके भर के दिखाओ. गाय के थन से निकलता दूध देखो, हिरन के नाफे में मुश्क, सांप के मुंह में जहर और मक्खी के मुंह में शहद. आदम की सारी नस्ल का मालिक, 2 पाँव पर चलने वालों का बादशाह, 4 पाँव पर चलने वालों का मालिक. पानी की मखलूक, हवाओं की मखलूक, जमीन की मखलूक, रेंगने वाले, तैरने वाले, उड़ने वाले, चिपकने वाले, दहाड़ने वाले, फाड़ने वाले, दसने वाले, सब पर मेरा अल्लाह की शहंशाही है. लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ व मा बैनहुमा व मा तहत सरा व यौम तजहर बिल क़ौली फ़इन्नहु यअलमु सिर्रा व अख़फ़ा. व
वही मालिक है उन सब चीज़ों का जो आसमानों और ज़मीन में है, जो आसमानों और ज़मीन के दरमियान है और जो ज़मीन के नीचे है। तुम जोर से कहो या धीरे से या उससे भी ज़्यादा छुपी हुई बात, वो सब कुछ जानता है। कौन है वो अल्लाह ही है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Alhamdulillah, that was indeed awe-inspiring. Wish the entire mankind could open their eyes and see Allah's glory. And if they ponder over the creation, Bismillah, they will become believers. Let us hear Standard 2nd students singing an Islamic song titled I Am a Believer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. They told me that I'm crazy who you're praying for. They told me there is nothing who you're looking for. Stop doing what you're doing, 'cause there is no hope. Just come with me, I'll show you what's behind your door. And they showed me all kind of lights. My eyes were locked, yes I was mesmerized. But deep inside I know that there's a better world. 'Cause I'm a believer. I'm a believer. I'm a believer. 'Cause I'm a believer. They will not change me. They will not break me. Oh, I will be stronger. 'Cause I'm a believer. 'Cause I'm a believer. I'm a believer. I'm a believer. 'Cause I'm a believer. They told me that I'm wrong and that they are right. They told me think again 'cause I don't see any sign. Stop doing what you're doing 'cause there is no more. Just come with me, I'll show you what's behind your door. And they took me to the other side. My eyes were locked, yes I was mesmerized. But deep inside I know that there's a better world. 'Cause I'm a believer. I'm a believer. I'm a believer. 'Cause I'm a believer. They will not change me. They will not break me. Oh, I will be stronger. 'Cause I'm a believer. 'Cause I'm a believer. I'm a believer. I'm a believer. 'Cause I'm a believer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The entire world is preoccupied with the coronavirus. Some are even having nightmares about it. We need to educate ourselves about
how the coronavirus infection spreads and how we can save ourselves. Tashmeem of Standard 7th will educate us about the coronavirus infection. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये तस्वीरें कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की बढ़ती हुई वबा की तरफ इशारा करती है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुछ लोगों को कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के ज़रिए और कुछ लोगों को उसके खौफ से आजमा रहा है। आइए कोरोना वायरस इन्फेक्शन के बारे में जानें। क्या आप जानते हैं कि कोरोना वायरस एक आम किस्म का वायरस है जो हमारी नाक, साइनसेस या हलक की ऊपरी हिस्से में इन्फेक्शन का सबब बनता है। ज़्यादातर कोरोना वायरस इन्फेक्शन ख़तरनाक नहीं होता है क्योंकि उसके सिम्टम्स सिर्फ फ्लू की तरह ही होते हैं जो खुद ब खुद ही कम हो जाते हैं। अलबत्ता कोरोना वायरस की कुछ किस्में ख़तरनाक भी है। तकरीबन 858 लोगों ने मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम की वजह से जान गंवा दी, जो 2012 में सबसे पहले सऊदी अरब में ज़ाहिर हुआ था। 2003 में सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी SARS के फैलने से 774 लोग हलाक हो गए थे। इस वायरस का नाम कोरोना वायरस क्यों है? इस वायरस की ताजनुमा शक्ल की वजह से। चलिए अब कोरोना वायरस के बारे में और मालूमात हासिल करें। 2019 में चाइना के वुहान सिटी में नोवेल कोरोना वायरस की शनाख्त पहली बार हुई। ये 2019 नोवेल कोरोना वायरस के नाम से मशहूर हुआ है। इब्तदाई दौर पर चाइना के वुहान सिटी में इस वबा के फैलने की वजह बहुत से मरीज़ों का ज़ाहिरी तौर पर समंदरी ग़िज़ा और जानवरों की मंडी से राबता था, जिससे ये अंदाज़ा लगाया गया कि ये जानवरों के ज़रिए इंसानों में फैल गई। मरीज़ों की कसीर तादाद से ये भी अंदाज़ा लगाया गया कि कुछ मरीज़ों का जानवरों से कोई भी ताल्लुक़ नहीं था, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि ये इंसान से इंसान के दरमियान भी फैलता है। कोरोना वायरस कैसे फैलता है? ज़्यादातर कोरोना वायरस इन्फेक्शन सर्दी, ज़ुकाम के वायरस के तरह ही फैलता है, खांसी और छींक से मुतासर अफराद के ज़रिए। किसी मुतासर शख्स के हाथों या चेहरे को छूने से, दरवाजे का हैंडल जैसी चीज़ों को छूने से जो इस वायरस से मुतासर लोगों ने छुआ हो। कोरोना वायरस की आम अलामात। ज़्यादातर कोरोना वायरस की अलामात किसी भी ऊपरी सांस की नाली के इन्फेक्शन से मिलती जुलती है, जैसे नाक से पानी जाना, खांसी, गले की खराश और कभी कभी बुखार। नाक और साइनस के इन्फेक्शन की वजह से नाक से पानी जाता है और मुंह और हलक के इन्फेक्शन की वजह से हलक में खराश और खांसी होती है। ज़्यादातर केसेस में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के इब्तदाई मरहले में हम नहीं जा सकते कि किसको कोरोना वायरस हो गया है या सिर्फ दूसरा आम सर्दी खांसी वाला वायरल इन्फेक्शन है। सांस की नाली के निचले हिस्से में ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स और लंग्स शामिल है। ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स वो नालियाँ हैं जिनके ज़रिए हवा लंग्स तक पहुँचती है। जब कोरोना वायरस इन्फेक्शन सांस की नाली के निचले हिस्से में फैलता है तो ये न्यूमोनिया का सबब बनता है। सांस लेने में दुश्वारी और संगीन सूरतों में जिस्म के तमाम अहम आज़ा जैसे किडनी और लिवर फेल हो जाते हैं, जिससे मुतासर शख्स की मौत हो जाती है। रोकथाम। 2019 नोवेल कोरोना वायरस इन्फेक्शन के रोकने के लिए फ़िलहाल कोई वैक्सीन मौजूद नहीं है। इस इन्फेक्शन की रोकथाम का बेहतरीन तरीका ये है कि इससे मुतासर लोगों से दूर रहे। इसके अलावा रोज़मर्रा के कुछ इजी स्टेप्स फॉलो करें। हाथों को साबुन और पानी से कम 20 सेकंड तक धोएं। पानी ना होने की सूरत में हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें।
बिना धोए हुए हाथों से आँखों, नाक और मुंह को छूने से परहेज करें। इस वायरस से मुताअस्सिर लोगों से दूर रहे। बीमार होने पर घर में रहे। खांसते या छींकते वक्त टिश्यू से मुंह को ढाँक ले, फिर टिश्यू को डस्टबिन में फेंक दे और हाथ धो लें। जो चीज़ें बार बार छुई जाती हो उसको डिसइंफेक्ट करते रहे। अगर किसी को 2019 नोवेल कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो तो उसे फैलने से रोकने में आप क्या मदद कर सकते हैं? अगर कोई 2019 नोवेल कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है तो अपने घर और सोसाइटी में लोगों तक फैलने से रोकने में मदद के लिए यह स्टेप्स पर अमल करें। बिना किसी मेडिकल रिक्वायरमेंट के घर से बाहर ना निकलें। ऑफिस, स्कूल या किसी भी पब्लिक प्लेस पर ना जाएं और ना ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, जैसे टैक्सी, बस, ट्रेन वगैरह। ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को घर के दूसरे लोगों से अलग रखें। अलग कमरे में रहें। अगर मुमकिन हो तो आप अलग बाथरूम का इस्तेमाल करें। जब आप दूसरे लोगों के साथ एक ही कमरे में होते हो या जब आप किसी डॉक्टर या किसी हॉस्पिटल में जा रहे हो तो फेस मास्क पहनें। खांसी या छींक आने पर अपने मुंह और नाक को टिश्यू से ढक लें, फिर टिश्यू को डस्टबिन में फेंक दें और फ़ौरन अपने हाथों को धो लें। अगर टिश्यू ना हो तो आप अपनी आस्तीन में खांस सकते हैं। हाथों को साबुन और पानी से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह धो लें। पानी ना होने की सूरत में हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। आप अपने घर के दीगर लोगों के साथ बर्तन, पानी के ग्लास, प्याली, खाने के बर्तन, टॉवेल, बिस्तर या दीगर चीज़ों को शेयर ना करें। इन चीज़ों को इस्तेमाल करने के बाद आप इन्हें साबुन और पानी से अच्छी तरह धो लें। अगर आपकी बीमारी बढ़ रही है तो जल्दी मेडिकल केयर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको सांस लेने में ज़्यादा परेशानी हो रही हो तो फ़ौरन हॉस्पिटल जाएं। इलाज: 2019 नोवेल कोरोना वायरस इन्फेक्शन के लिए कोई मखसूस एंटीवायरल ट्रीटमेंट रेकमेंड नहीं की गई है। 2019 नोवेल कोरोना वायरस से मुताअस्सिर अफराद को सपोर्टिव केयर दें, जिस तरह आप नज़ला ज़ुकाम का इलाज करते हैं। मुकम्मल आराम करें। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। गले की खराश और बुखार को रोकने वाली मेडिसिन इस्तेमाल करें। संगीन सूरतों में मरीज़ को हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहिए और उनके अहम आज़ा की ट्रीटमेंट करवाइए। हर आफत अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से एक निशानी है। हमने इस निशानी से ये सीखा है कि एक छोटा सा वायरस जो हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, इतनी बड़ी तबाही मचा सकता है। यहाँ तक कि अगर 2 लोग इस वायरस से मुतासिर हैं तो ज़रूरी नहीं कि दोनों का ही संगीन सूरत हाल हो। ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला का ही फ़ैसला है कि कौन ज़्यादा संगीन बीमार होगा और कौन नहीं। इसलिए आइए अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ करें कि हमें इस ख़तरनाक कोरोना वायरस इन्फेक्शन से बचाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।